یہ کہانی غریب درزن کی ہے جو اپنی محنت سے اپنے پورے گھر کا پیٹ پال رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان چلاتی تھی اور پورے محلے میں اس کی سلائی کی خوب تعریف کی تھی، اس لیے بہترین تھی کہ گاؤں کی سب سے امیر زمیندار کی بیگم بھی اپنے کپڑے اسی سے سلواتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بنائی ہوئی سلائی کیے ہوئے کپڑے تیار تھے، لیکن زمین کی بیگم نے انہیں لینے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، مگر میں اس کے ابو کی طبیعت بہت خراب تھی اور اسے ان کی دوائی لینی تھی۔ وہ کپڑے لے کر خود حویلی پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ 1 گھنٹے تک انتظار کرتی رہی، پھر آخر کار بیگم صاحبہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی نظر آئیں۔ بیگم صاحبہ نے سرخ لال ساڑی پہن رکھی تھی، بھاری بھرکم گلوبن گلوبن گلے میں جھوم رہا تھا اور وہ ناز نخروں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ انہوں نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور طنز بھرے لہجے میں بولی، اس بار بہت دیر کر دی تم نے بیگم صاحبہ، میں نے تو 2 دن پہلے ہی سلائی پوری کر لی تھی، سوچا کہ آپ کی نوکرانیاں کر لے جائے گی، لیکن جب ان نہیں آئی تو میں خود ہی لے آئی۔ بیگم صاحبہ نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیا اور بڑبڑاتے ہوئے بولی، رضیہ کی بچی کو تو آنے دو، اس سے پوچھتی ہوں۔ پھر وہ ایک ایک کر کے کپڑے کھول کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی تیاریاں کچھ کم ہوئی اور تعریف کرتے ہوئے بولی، صلاحیت تو بہت اچھی ہے، پہن کر دیکھوں گی کہ فٹنگ ٹھیک ہے یا نہیں۔ درجن راحت کی سانس لی، اس سے لگا کر اسے محنت کی مزدوری مل جائے گی۔ لیکن ابھی حویلی کے ایک کونے سے شور اٹھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا ہنگامہ ہو گیا ہوں۔ سارے ملازم توڑے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا تو کسی کے ہاتھ میں لاٹھی۔ بیگم صاحبہ بھی بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چوکیدار کو بلا کر پوچھا، کیا ہوا؟ چوکیدار کھلا ہوا میں بولا، بیگم صاحب، حویلی میں بہت بڑا اچھا دھاری ناگ دیکھا ہے، وہ ایک درخت سے لپٹا ہوا بیٹھا تھا، شکر ہے کہ مالی نے دیکھ لیا، جلد ہی اسے پکڑ لیں گے۔ اتنا سنتے ہی حویلی کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ رقیہ بھی گھبرا گئی، لیکن اسے اپنی مزدوری کی فکر تھی۔ وہ کام کی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ پیسے دے دیجیے، مجھے جانا ہے۔ بیگم صاحبہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور لاپرواہی سے بولی، ہاں میں رضیہ کے ہاتھ پیسے بھجوا دوں گی، اور بھی کپڑے سلوانے ہیں تم سے۔ درجن کی امیدیں ٹوٹ گئیں، مایوس ہو کر بولی سے نکلی اور اپنی خالہ زوبیہ سے ادھار مانگنے چلی گئی، لیکن خالہ نے اسے ترسکار بھری نظروں سے دیکھا اور غصے سے بولی، ہم کوئی بینک نہیں جو ہر بار تمہار دی، لیکن ان کی بڑی بیٹی نگینہ بڑی مہربان تھی، انہوں نے رقیہ کو پیسے دے دیے۔ گرجے نے تشکر بھری نظروں سے دیکھا اور جلد واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر آ کر اپنے ابا کی دوائیاں خریدی اور تھوڑی سبزی بھی لے آئیں۔ ابا بہی بھی چارپائی پر لیٹے تھے اور چھوٹا بھائی سہیل ٹیوشن سے لوٹ آیا تھا۔ یہ تینوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اماں کا انتقال کب کا ہو چکا تھا اور اب موجود ہو چکے تھے، مگر جن کے ہاتھ میں سلائی کا ہنر نہ ہوتا تو شاید بھوکے مر جاتے۔ رات کو جب وہ ابا کو حویلی میں ناگ دیکھنے والی بات بتا رہی تھی تو ان کے چہرے پر عجیب سا تان ہو گیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، ایک دن تو اسے لوڈ نہیں تھا، آخر کب تک وہ بدلہ نہیں بنا سکتا تھا؟ ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سانس لی اور بولے، اگر انہوں نے اسے مار دیا تو پھر لوٹے گا؟ اچھا دھاری ناگنا کبھی نہیں مرتا، 100 سال بعد پھر سے جنم لیتا ہے۔ رقیہ ہنستی، ابا آپ بھی نہ، یہ سب بس قصے کہانیاں ہیں۔ مگر ابا کے چہرے کی گمبھیرتا اسے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ شام ڈھلتے ہی موسم ٹھہر گیا۔ تیز آندھی اور لال مٹی کے گوبر سے گھر کی کچی دیواریں کانپ اٹھی۔ نفیس اکڑنے لگا۔ اس نے فوراً سہیل کو اندر بلایا اور ابا کی چارپائی کمرے میں بچھا دیا۔ طوفان کافی بڑھ چکا تھا جب اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ رات کو کون ہو سکتا تھا؟ اندر سے ہی آواز لگائی، کون ہے؟ باہر سے بھاگنے کی آواز آئی، مسافر ہوں، ایک رات کی پناہ چاہیے۔ رقیہ جانتی تھی کہ ان کا گھر مسافروں کے لیے راستہ تھا، مگر اتنی رات کو کسی اجنبی کو اندر بلانا ٹھیک ہوگا؟ مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ گہری آنکھیں، گوری چٹی رنگت اور ایک شہزادے جیسی شخصیت، لیکن اس کا حال برا تھا۔ جسم پر جگہ جگہ ہر زخم تھے، کپڑے خون میں سوئے ہوئے تھے۔ رقیہ گھر آ کر بولی چٹ کیسے لگی؟ بولا، لوگوں نے مارا ہے، کوئی حصہ نہیں چھوڑوں، لیکن میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں عجیب سی دہشت تھی۔ رقیہ نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے دیا۔ وہ پتھر کے پاس بیٹھ گیا۔ رقیہ سوچ رہی تھی کہ اب ان کو جگہ دے، مگر پھر خیال آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی کپڑا ہوگا؟ پوچھا۔ رقیہ کے پاس صرف نئے کپڑے تھے، مگر اسے اپنا پرانا دوپٹہ یاد آ گیا۔ اس نے دوپٹہ نکال کر اسے دیا۔ اس کے ہاتھوں میں تھے کہ مرہم پٹی کرنے لگی۔ اس کا دل توڑ رہا تھا، اتنی قریبی سے اس نے پہلے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا تھا جیسے اپنا سب کچھ ہار چکا۔
रुकिया ने उसे खाने का पूछा तो बोला अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। रुकिया ने जल्दी से रात का बचा हुआ खाना लाकर दे दिया। से देखकर वो सोचने लगी कि इतना खूबसूरत आदमी काम में किसके घर आया होगा। इसकी आंखें किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी। आपको मेरी वजह से आधी रात को तकलीफ हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ रहा हूँ, वरना वो तो मुझे मार डालते। आप परेशान होगी, आपके दुश्मन इसी गांव के हैं। उसने सिर्फ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। जब तक मेरे जहन भी ठीक ना हो जाए मुझे इस घर में रहने दें और किसी को मेरे बारे में मत आइएगा। रज्ञा ने बिना सोचे कहा, आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं, हमारे घर में कोई आता नहीं है। निगाहों से देखता रहा, फिर जमीन पर लेट गया। शायद गाना से ज्यादा थी। रज्ञा भी इसकी तरफ देखते देखते सो गई। सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो घबरा गई। घर में इसका नामो निशान तक नहीं था। इसने तो कहा था 3 दिन रहेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया। यही सोचते हुए अबा और सहेल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन उसका दिल बेचैन था जब उसने अचानक उसे आवाज़ दी। उसने चाय का प्याला रखा और उनके पास चली गई। अब्बा के चेहरे पर हैरानी थी। ये सहन में अजीब व गरीब निशान कैसे हैं? लहजे में कहा कि इनकी निगाहों के साए में देखा तो सच में फर्श पर अजीब से निशान थे। उसने अनजान बनते हुए कहा कि न जाने किस चीज़ के हैं, आप ही बताइए, आप ज़्यादा तजर्बाकार हैं। कि हर सांस लिए बोले, ऐसे निशान तो खेतों में लिखते थे जहाँ नागों का बसर होता था। लगता है यहाँ से कोई नागन कर गया है। अब आपकी बात सुनकर रकिया के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल पर हंसने लगी। अब नाक हवेली में था, यहाँ नहीं। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ना संजीदगी से कहा, डरा नहीं रहा बेटा, मैंने अपनी जिंदगी बहुत कुछ देखा है। रुकिया उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके मुन्ना में कुछ सवालात उठने लगे। वो मन ही मन किसी और के बारे में सोच रही थी कि कौन था, कहाँ चला गया। काश वो दोबारा लौट आए ताकि वो उसका नाम पूछ के इस बेचैनी के बीच अपने पड़ोस की खाला के बेटे की शादी के लिए कपड़े में शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खाला अपने कपड़े ले आई। उन्होंने रुकिया को ध्यान से देखा और कहने लगी, मुझे तो सारी जिंदगी कम 12 ही रहना पड़ेगा ना। फिर उनसे उनकी तरफ देखा। खाला ने ठंडी सांस भरी। देख एक तरफ तेरा बाप मजदूर है, घर में खाने को कुछ नहीं, तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे हो गई? जवाब दिया खाला, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, मैं अपने अब्बू और भाई की जिम्मेदारी उठा लो, यही मेरे लिए काफ़ी है। खाला ने उसके सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे इम्ता बेटी, लेकिन तुझे देखकर रहम आता है। रोकिया उनकी बातों पर कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। इसे इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई थी। इतने में सहील ट्यूशन से लौटा और कहने लगा, बाजी ट्यूशन वाली फीस मांग रही थी। रोकिया ने उसकी तरफ देखा और सर हिलाकर कहा, 1-2 दिन में मिल जाएगी। उसे मालिक पर गुस्सा आ रहा था, जिसने अभी तक नौकरानी के साथ पैसे नहीं भिजवाए थे। शायद उसे फिर से जाना पड़ेगा। रात के वक्त जब वो कपड़े सिलाई कर रही थी तब भी उसके पीछे आ गई। मैं मगर जानी पहचानी आवाज़ कैसी हो, तुम बच्चों की गई। उसने गर्दन घुमा है और देखते ही उसके होश उड़ गए। वो नौजवान उसके सामने बैठा था। बोली, तुम कहाँ से आए? उसने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दरवाज़ा खुला रह गया था। रुकिया के पैरों तले ज़मीन की सुर्खी। उसने तो सहील को ताकीद की थी कि दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दें, बनाते हुए जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। तुमने कहा था कि 3 दिन तक यहीं रहोगे, फिर कहाँ चले गए थे? रुकिया ने पूछा। नौजवान हल्का सा मुस्कुरा। या तो तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसने उसकी बेचैनी को भांप लिया था। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर उस घर में किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। रुकिया उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हाँ में सर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो। नफीसा ने बना कुछ कहे बना के रखा हुआ दूध मिलाकर उसे दे दिया। उसने देखा कि दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसकी सख्त ज़रूरत थी। दूध ख़त्म करके उसने खाली प्याला लौटाते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। रुकिया की बात सुनकर चुप रही, मगर मन में बहुत कुछ कर रहा था। वो उसे पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नौजवान रुकिया की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद लेना है।
बस थोड़ा वक्त चाहिए थी कि उसे आपने अबा की आवाज़ सुनाई दी। बेटी इधर आओ की आवाज़ आई। रुकिया घबरा कर उठी और अंदर चली गई। वो कहने लगे, बेटा इतनी देर से देख रहा, बाहर बैठकर किससे बातें करी, तुम्हारी आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी। रुकिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने साहन में झांका लेकिन वहां कोई नहीं था। वो कहाँ चला गया था? जल्दी से खुद को संभालते हुए इसने कहा, अबा किसी से नहीं, मैंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा है। रोकिया ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया, क्यों नहीं, कोई वहम हुआ है। जब आप सो गए तो फिर सहन में आई, मगर वहां कोई नहीं था। से दुख हुआ कि वो बना बताए चला गया। सुबह जब सुबह का नाश्ता बना रही थी तब भी अब्बा की चिल्लाने की आवाजें, मेरी इधर और बेटी ये देखो। आज फिर वैसे ही रुकिया बाहर आए तो देखा कि वही अजीब व गरीब निशान सहन में फैले हुए थे। अब वो घबराते हुए बोले, मैं तुमने कहा था कि हवेली में ना देखा था, अब तो ऐसा लगता है कि जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। अब मगर रुकिया के चेहरे पर बस खामोशी थी। रुकिया और उसके अब्बा के दरमियान अजीबो गरीब बातें होने लगी थी। अब बात का यकीन था कि हवेली में जो ना देखा गया था वो अभी भी जिंदा है और पूरे गांव में घूम रहा है। ये सुनकर वो परेशान हो गई और कहने लगी, आसान तो हवेली के मुलाजमों ने मार दिया था, लेकिन अब को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसी दिन से उसने कहा, मालकिन ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं भिजवाए हैं, मुझे बाजी के पैसे वापस करने हैं, तो मैं हवेली जा रही हूँ। इसका खाना बना कर रख दिया और पैदल ही हवेली की और चल पड़े। रास्ता कठिन और सुनसान था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हुआ में अजीब सी सरसराहट थी जबकि 4 ओवर में बसी हुई थी। रुकिया ने पलट कर देखा तो हैरान रह गई और उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हमेशा उसको बेचैन कर देती थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जहां तुम में भी पहुंच जाऊंगा। रुकिया ने सवालिया नजरों से देखा और बोली, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? उसने सर हिला दिया और बोला, तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी हो सकता है कि मैं इस गांव में ना रहूं। रकिया ने घबरा कर कहा, खुदा ना करे तुम हमेशा यहीं रहो। इसे और देर हो रही थी लेकिन वो जल्दी से चल पड़ी। जैसे ही हवेली पहुंची मालकन ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी। आजकल हवेली में बहुत परेशानियां चल रही हैं। वह सर पकड़ कर बैठ गई थी और सकीना को आवाज़ दी कि आओ मेरे कमरे से पड़ा है। रजिया ने रकिया को गुस्से से देखा और जब रकिया बाहर निकली तो पीछे से बोल पड़ी, तुझे अब भी सुकून नहीं हुई? जितनी परेशानियां हैं, और वो अपने पैसे लेने आ गई। रिकिया ने जवाब दिया, मेहनत से कमाने में क्या शर्म कैसी, मैं घर चलाने वाली हो, हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। रजिया फिर मैं देती हुई बोली, यहाँ तो मालकिन को अपने बेटे और शौहर की पड़ी हुई है, पूरा खानदान खतरे में है। मालिक बार बार कहती रहती है कि जिसका डर था वही हुआ। 3 दिन से हवेली में कुछ नहीं खाया। रिकिया ये सुनकर और भी परेशान हो गई। आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि हवेली के लोग खाने तक से दूर हो गए थे। जब वो घर पहुंची तो देखा कि चाचा फजलदीन अब्बा के पास बैठे थे। वो हवेली के मुलाजिम थे और अक्सर अब्बा से मिलने आ जाते थे। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि चाचा फजलदीन कह रहे थे, कल बहुत बड़े स्पेरे को बुलाने वाले हैं। वो साथ में गांव में रहता है, 90 साल का हो गया है। वो जहां जाता है वही बता देता है। अब रुकिया सुन रही थी और बुरी तरह भीग रही थी। अब्बा कहने लगे, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उन्हें सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद वापस लौटेगा और तबाही मचाएगा। मैं दोनों को एक गहरी बात कर रहे थे, लेकिन रुकिया को उसमें शामिल नहीं किया। दूसरे दिन खबर फैली कि सांप गांव में आ चुका है। पूरा गांव सांप को ढूंढ रहा था जो हवेली में घुस आया था और उसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन घायल होकर गायब हो गया था। तो हवेली में था और ना ही गांव में इसका कोई सुराग मिल रहा था। उसी वजह से जमींदार ने स्पेरे को बुलवाया था। आधी रात को जब रुकिया बिस्तर पर लेटी थी तो उसे जहन में सरसराहट महसूस हुई। उसकी आंखें खुल गईं। वो घबरा कर बाहर आई और जो देखा उसे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो नौजवान कोने में सोमा हुआ बैठा था। उसकी हालत देखकर नाफिस हैरान रह गई। तो अंदर कैसे आई, उसने पूछा। वो लड़का घबराई हुई आवाज़ में बोला, मैं दीवार कूद कर आया हूँ। अगर ऐसा ना करता तो मेरी जान ले लेते। देखती रही। वो बार बार क्यों आता था? उसका दिल हर बार उसकी मौजूदगी से बेचैन हो जाता था। उसने इस लड़के के जख्मों के बारे में पूछा। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रूह जैसी। ये सुनकर रोकिया चौंक गई। और वो कौन थी?
उसने पूछा। लड़के की हरी आंखें आंसुओं से भर आई। वह मेरी मोहब्बत थी। तुम्हारी आंखें शक्ल इसी जैसी हैं, तुम्हें देखकर बस इसी की याद आती है ना। आपके दिल में उतर आई। उसका मतलब है पहले से ही किसी और से मोहब्बत करता था। वो सोचने लगी मैं तो एक गरीब लड़की और ये इतना खूबसूरत नौजवान, उसे तो किसी शहजादी के साथ होना चाहिए। उसने खुद को संभाल के बचा कहाँ चली गई। उसने गुस्से से जवाब दिया, मेरी रूह को मुझा से छीन लिया, मैं बदला लेने आया हूँ। रुकिया ने पूछा किसने मारा, लेकिन लड़का बगैर जवाब दिए तके चला गया। मैं पहर आऊंगा ये कहकर अंधारी रात में एकदम गायब हो गया। अगले दिन फजलदीन चाचा हाफजा के पास आया और कहने लगा, चल आज पूरे गांव में नाको तलाश करेगा, तुझे भी तमाशा देखना चाहिए। अब आप पहले तो इनकार करने लगे, लेकिन फजलदीन ने उनके कान में कुछ कहा और फौरन थोड़ी देर बाद फजलदीन और बाहर गए। लेकिन जब लौटे तो बेचैन थे। वो बड़ा ढूंढ लिया लेकिन वो जख्मी न कहीं नहीं मिला। ना रोकिया समझ नहीं पाई कि इतने परेशान क्यों थे। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिया है। हवेली का मालिक अपने आदमियों के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था। आपने एक बूढ़ा सा भी था। हवेली का मालिक गुस्से से गुर्जा, नूरालदीन तो उन्हें इस नाग को घर में छुपा कर रखा है। फजलदीन ने सब बता दिया है। अब इसका सर झुका हुआ था। नहीं जानता, उन्होंने धीरे से कहा। मालिक ने बोला, अगर मेरी बात सच निकली तो सजा के लिए तैयार रहना। मैं मर्दों को भी कब्र से निकाल सकता हूँ। तभी इस पीर को अचानक दीवार के पास एक लंबा मोटा नाग दिखाई दिया। वो झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गया। पूरा गाँव उसके पीछे दौड़ा लेकिन वो नहीं मिला था। रुकिया चुपचाप खड़ी थी। अब इसने पूछा, ये सब क्या हो रहा है अब्बा? ये आपको इस तरह क्यों गिर रहा था? इन गहरी सांस ली और मुझे क्योंकि मैं इसके बहुत राज जानता हूँ। रुके हक्का बक्का रह गई। तो अब आने का 20 साल पुरानी बात है जब इस गांव में मेरे अब्बा और चौधरी की बहुत चर्चे थे। मेरा बाप एक बहुत बड़ा सपीरा था, लेकिन फिर हादसे के बाद मेरे बाप ने ये काम छोड़ दिया। हमारा गांव इस जगह पर था जहां पर रेत ज़मीन में दर्जनों सांप और राग रंग नजर आते थे। इसी वक्त हवेली भी नई तामीर हुई थी, लेकिन हवेली के खौफिया कोने में एक जोड़ा भी आबाद हो गया। दोनों अपनी दुनिया में मगन थे, न जाने वो कौन से तकाजा कर रहे थे। लेकिन हवेली के मालिकों ने उन्हें देख लिया। वो उस नागी के जोड़े को जान से मारना चाहते थे, क्योंकि नाग का खौफ हर किसी इंसान के जहन में था। मैं हर वक्त अपने अब्बा के साथ रहता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हबीब मालिक ने अब्बा को बुलाया था। वो अब उससे कहने लगे कि तूने इस जोड़ी को ख़त्म करना है। अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, हरगिज़ नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर नाग मरता है तो इसकी नागन सदियों तक तुम्हारा पीछा करेगी, और अगर नागन मरती है तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी लूट कर वापस आएगा। अब्बा ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो हवेली के मालिकों को भी शदीद गुस्सा आ गया। उस वक्त तो चुप हो गए, लेकिन मैं क्या जानता था कि शहर से वापस गाँव की तरफ लौटते हुए अचानक कुछ लोग मुझे अगवा कर लेंगे। ज़बरदस्ती मुझे अपनी हवेली में ले गए और कहने लगे, तू भी अपने स्पीरे बाप का बेटा है। अब यहाँ बैन बजा, हम भी देखते हैं कि नाग जोड़ा कहा चुप बैठे हैं। अब इस बात से साफ इनकार कर दिया था। मैं इस नाग के जोड़े को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, तो अब मैं उनकी बात मानने पर राजी होना पड़ा। बड़ी खौफनाक कहानी लिखी गई। जैसे ही मैंने बेन बजाना शुरू की, मैं दोनों नाग झूमते हुए बाहर आ गए। वो बहुत कम उम्र और मासूम लग रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नागिन की जोड़ी आज भी मेरी नज़रों से ओझल नहीं हुई। मैं ये खौफनाक मंजर देख रहा था। जैसे ही मैंने उन्हें बाहर निकलते देखा, मैं फ़ौरन ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि इस रात नागिन अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी। हवेली के मालिक के हुक्म पर उसके आदमियों ने इस नागिन को जान से मार डाला था। नाग अपनी जान बचाने के लिए ना जाने कहाँ खो गया था। अब हवेली में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि नाग नागन की जोड़ी से हवेली पाक हो चुकी थी। अब उन्हें कोई खतरा नहीं। फिर कई साल गुजर गए। अचानक अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं भी यही काम कर रहा था, लेकिन एक दिन एक जहरीले नाग ने मुझे डस लिया। मैं वहीं पर गड़बड़ा चुका था कि उस नाग का जहर मेरे पूरे बदन में नहीं फैला, सिर्फ मेरी टांगों को मुतासर किया, और आज मैं बिस्तर पर मजबूर बनकर लेता हूँ। लेकिन आज वो स्पीरा जो घर आया, वो समझ गया था कि हमारे घर में वो नाग मौजूद है। उसकी आहटें मैं भी पहचानने लगा था। जब भी तो मुझसे पूछती कि अब उस ज़मीन पर ये निशान कैसे हैं, या जब मैंने उससे पूछती कि अब उस ज़मीन पर ये निशान कहाँ से आए, तो
इस बात से इनकार कर देते हैं तो जानती ही नहीं थी ये निशान कैसे हैं। लेकिन मैं इसकी आहटें और उसके निशान अच्छी तरह पहचान लगाता था। मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की और उस कोशिश में किसी को भी आबाद नहीं बताए। मैं इसे 2-3 दफ़ा दीवार पर देख चुका था, लेकिन आज वो यहाँ से भाग गया है। न जाने अब वो मेरा क्या हाल करेगा। मुझे डर है कि कहीं लोग इसे भी ना मार डाले, लेकिन वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर आया है। अब्बा ने मुझे ये कहानी सुनाई तो अचानक इस तरह के आदमी आए और अब उसे गुस्से में कहने लगी एक बार फिर से, बच निकलने। मैं कामयाब हो गया, लेकिन हम उसे तलाश कर रहे रही। तो पहले की तरह उस नागजोड़ी की जान बचाना चाहता है तो ये असल में हमारा दुश्मन है। तभी तो उन्हें असन नाग को अपने घर में छुपा लिया था। अब्बा ने जवाब देना मुनासिब ना समझा। भौंकते हुए खुद ही धमकी देते हुए वहां से चले गए। मैं अब्बा को तसल्ली दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब्बा के चेहरे पर भी कोई फिक्र, कोई गम नहीं था। रात को मैं सिलाई मशीन पर बैठी अपने कपड़े सी रही थी जब अचानक मुझे अपने पीछे से महसूस हुई। मैंने देखा सब्ज आंखों वाला वो खूबसूरत नौजवान मेरे पीछे ही बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हैरान होकर उससे कहने लगे कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कहने लगी, क्या तुम ये गांव छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा, हाँ मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ कि मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। सुबह तक उस हवेली में हंगामा चाहेगा, लेकिन क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे सामने बार बार क्यों आता रहा? उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि ये मेरे दिल की आवाज़ थी। वो बार बार मेरे सामने आ रहा था क्योंकि सच में मैं उसे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। फिर उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, तुम अपने अब्बा से पूछ लेना मेरे बारे में कौन कौन है कि मुझे न सिर्फ जानते हैं बल्कि पहचानते भी हैं। अचानक उसकी सब्ज आंखें चमकने लगी। उसके धोखे में मत आओ बेटी, ये इंसान नहीं बल्कि एक अच्छा दारिनाक है। अचानक मेरे पीछे अब्बा की आवाज़ सुनाई दी। मैं खौफजदा होकर पलटी तो हम मेरे पीछे ही खड़े थे। तभी मैं उसकी सबसे चमकती आंखों को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें रंग बदल रही थी, लेकिन वो अब इनको मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। कभी वो आपा के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, नूरदीन, तो ने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और आज भी तो ने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन तो मेरी नागिन को ना बचा सका। तेरी वजह से वो मर गई, लेकिन ये बाद में मुझे पता चला कि तुमने बचाने की कोशिश की थी। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना बदला लेने के लिए तुझे दसाहा, लेकिन तू बच गया। तेरी खुश नसीबी थी। अब मैं जा रहा हूँ। तेरी ये बेटी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि इसकी किस्मत भी इसी के जैसी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया था वह मैं नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते तुम्हारे घर में एक चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन साबित होगी। या कहते हैं उसने आखिरी नज़र में अजब दर्द और अचानक ही नाक बनकर इस घर से चला गया, जैसे बाहर कभी आई ही नहीं था। मैं वहीं साकत खड़ी थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने आने वाला खूबसूरत नौजवान जो हमारे ही घर में हर वक्त मौजूद रहता था एक अच्छा धारी नाग था। मैं अभी तक सदमे की कैफियत में खड़ी थी। अब्बा ने हाई मुझे कंधे से हिलाकर अपनी तरफ मतवज्जा किया और कहने लगे, उसने अपना बदला ले लिया है। अब न जाने सुबह कैसी क़यामत आने वाली है। अब ये तो सभी पूरी रात हम दोनों बाप बेटी बेचैनी से जागते रहे, लेकिन सुबह जो खबर मिली उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। हवेली का मालिक मर गया था। उसे किसी जहरीले नाग ने यह खबर सबके लिए बहुत बड़ी थी। फिर इस दिन अब्बा कहने लगे, हम ये गांव छोड़कर चलते हैं, इससे पहले कई लोग इल्ज़ाम हमारी तरफ लगाएं। अब्बा परेशान थे। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा सामान समेट लिया, लेकिन अचानक मेरी नज़र एक चमकती हुई खूबसूरत चीज़ पर पड़ी। मैंने जैसे ही उसे उठाकर देखा, अब्बा ने इसे पहचान लिया। यही रहा है। अब्बा ने उसे पहचान लिए। यही रहा है जो नाग हमारे लिए छोड़ गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ। अब मैंने उसे संभाल कर अपनी हथेली पर रखा और फिर उसे एक सफ़ेद कपड़े में लपेट लिया। हमने ये वो गांव छोड़ दिया। जाकर हमने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। उस नाग के दिए हुए हीरे ने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। कीमत करोड़ों में थी। अब्बा का इसका इलाज हो गया। सहेल अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने लगा, जबकि मैं अपना बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया। अब वो शहर का मशहूर ताजिर था। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये लड़की कभी एक गरीब दर्शन थी जो चंद पैसों के लिए माली फुर्ती थी। अब्बा मुझसे कहते थे, अब तो भी शादी कर ली, अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ कर को। कैसे कहती हो? सनहरी आंखों वाले नाग,
میرا دل آپ کا قبضہ کر لیا تھا. بھلے ہی وہ ایک ناک تھا لیکن وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا. میں اس کے علاوہ کسی سے شادی کا نہیں سوچ سکتی. اس کا انتظار کروں گی.